The moment we talk about protected cultivation, what comes to our mind? Generally, greenhouse cultivation that comes to our mind. But protected cultivation is not only the greenhouse cultivation, it is way beyond that. So, in this lecture, we will cover what is protected cultivation, why we need protected cultivation, what are the scope and importance of protected cultivation, what are the types of protected cultivation. So, in this particular lecture, we will cover all of these concepts, right? So stay tuned with us, and if you are new to this channel, then make sure you are subscribing to this channel and you are pressing that bell icon, so that whenever we upload a new lecture on any concept or any mock test or any marathon session, then you will get notified as soon as possible. So let's dive into the topic, that is protected cultivation. What is protected cultivation? अगर आपको पूछा जाता है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है, देन पहले अगर हम ब्रेक करेंगे ये जो टर्म है प्रोटेक्टेड एंड कल्टीवेशन. सो ये जो टर्म अगर हम ब्रेक करेंगे, प्रोटेक्टेड मीन्स इट इज वी आर गिविंग सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, राइट? Whatever protection we are giving, we will discuss later on, but we are giving some types of protection to that cultivation practice. What is cultivation? Whatever agriculture activity we are doing, whatever management practices we are doing, that is known as cultivation, to get some produce from whatever we are sowing or whatever we are managing. In this case, we are managing the crops, right? So crops we are cultivating, and we are giving some kind of protection to that cultivation measure. So that is basically protected cultivation. So let's talk about the definition kind of thing. सो ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट. प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्या होता है, हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है. जनरली क्या क्या एनवायरनमेंट रहता है? सपोज एक क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं फील्ड लेवल में, फील्ड कंडीशन में, तो दो टाइप का एनवायरनमेंट उसके ऊपर अफेक्ट करता है. एक तो हो गया एरियल एनवायरनमेंट जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे कि सोलर रेडिएशन हो गया, या फिर डे लाइट हो गया, सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड वेलोसिटी हो गया, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता. एक तो एरियल एनवायरनमेंट हो गया, और एक सॉयल एनवायरनमेंट. सॉयल एनवायरनमेंट मतलब जो राइजोस्फीयर एनवायरनमेंट रहता है उसको सॉयल एनवायरनमेंट बोलते हैं. तो जैसे सॉयल टेम्परेचर हो गया, सॉयल पीएच हो गया, सॉयल माइक्रोवेल, सॉयल हेल्थ हो गया, राइट? तो इसको हम सर्टनली मैनेज कर सकते हैं सॉइल एनवायरनमेंट को, लेकिन एरियल एनवायरनमेंट को हम ज़्यादातर मैनेज नहीं कर पाते. तो लेकिन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्या होता है, हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं. जो भी क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं inside a particular boundary or inside a particular like structure, we are growing that crop, and we are managing, we are controlling all those parameters, like all those environmental parameters like wind, then air circulation, then water, then radiation, whatever the parameters that needs a crop needs, we are controlling that one, right? We are not letting the outer environment affecting the crop to affect the crop. So in the protected cultivation, or in a protected cultivation, we are growing certain crops in control environment. So what are we protecting, right? The temperature, relative humidity, light, okay, can be regulated as per the crop requirement. क्रॉप को जो भी जितना भी क्वांटिटी में चाहिए होता है उतना क्वांटिटी में हम उसको कंट्रोल करके प्रोवाइड कर रहे हैं क्रॉप को. इससे फायदा क्या होगा? अगर हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें फायदा क्या होगा? दिस इज यूजफुल फॉर हेल्दी और हाई वैल्यू क्रॉप प्रोडक्शन, ऑफ सीजन कल्टीवेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट कल्टीवेशन. क्या होता है इसमें? हम कौन सी राइस तो नहीं ग्रो कर सकते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में. क्यों नहीं ग्रो करेंगे? क्योंकि ये इकोनॉमिक नहीं होगा. प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए हमको एक सोफिस्टिकेटेड थिंग चाहिए. ओके, सोफिस्टिकेटेड थिंग यानी एक कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए. उसको बनाने के लिए जो कैपिटल हमारा लग रहा है, जो पैसा लग रहा है, वो अगर हम लो वैल्यू क्रॉप जैसे कि सीरियल्स हो गया, मिलेट्स हो गया, पल्सेस हो गया, इसको ग्रो करेंगे तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. हमारा जो इकोनॉमिक आउटपुट है, हमको ईल्ड के साथ साथ इकोनॉमिक भी देखना पड़ेगा, राइट? तो क्रॉप प्रोडक्शन वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होगा. देन और किसके लिए काम आता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन? अगर हमको ऑफ सीजन कल्टीवेशन करना है, सपोज एक रबी सीजन क्रॉप है, उसको हमको खरीफ में या फिर समर में कल्टीवेट करना है, ग्रो करना है, हमको कुछ आउटपुट लेना है, तो फिर उस केस में हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, जहाँ पे हम फोर्स्ड
फोर्स्ड कल्टीवेशन वहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में वो जो क्लाइमेट है हमारे हाथ में, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऑफ सीजन कल्टीवेशन में भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग, एज यू नो क्लाइमेट इज चेंजिंग डे बाय डे ड्यू टू सपोज लाइक एफोरेस्टेशन हो गया, या फिर डेजर्टिफिकेशन हो गया, या फिर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो क्लाइमेट इज चेंजिंग एट अ रैपिड पेस। तो in this changing climate, if we want to grow certain high value crop for our fulfillment, for the fulfillment of market, for the fulfillment of food security, so we need to have a protected cultivation facility, right? तो ये सारे कुछ डेफिनेशन हो गया, और क्या क्या हम मैनेज करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, और क्या ऑप्शंस है, जैसे कौन सी केस में हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हमारे लिए यूजफुल होता है, उसको हम डिस्कस कर लिए। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, राइट? दिस इज नॉट ओनली ग्रीन हाउस, नो पॉली हाउस और वट एवर। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आर दिस डिफरेंट टाइप्स. Forced ventilated greenhouse, these are forced ventilated greenhouse, mostly you can find in your university or research institute, this type of protected cultivation. These are forced ventilated greenhouse. इनके लिए क्या होता है, एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स्ड वेंटिलेशन होता है, राइट? यहाँ पे फैन लगाया होता है और वेंटिलेटेड या फिर एग्जॉस्ट फैन लगाया होता है, तो यहाँ पे फोर्स्ड वेंटिलेशन होता है, तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरिंग है, यहाँ पे एनर्जी चाहिए होता है, आउटर सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। देन अनदर इज नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस है और लेकिन ये नेचुरली वेंटिलेटेड है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे वेंट है इनका, ये नेचुरली वेंटिलेटेड है, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई सर्कुलेटिंग जो फैन है वो नहीं होता है, राइट? ये है नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस। देन नेट हाउस, राइट? इस टाइप का भी आप देखे होंगे आपके जो यूनिवर्सिटी में, या फिर आप कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस टाइप का भी देखे होंगे। यहाँ पे सिर्फ नेट में ये हाउस बना रहता है। तो इसका मेन क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे इंसेक्ट को हम मतलब इंसेक्ट ट्रेसपासिंग, जो कि इंसेक्ट, आप लोग पता है कि इंसेक्ट भी क्रॉप को फीड कर लेता है, उससे कोई सकिंग पेस्ट हो गया वो डैमेज करता है क्रॉप को, या फिर वो वेक्टर को कैरियर करते हैं, जैसे वायरस डिजीज वगैरह वो भी कैरी करते हैं। तो इंसेक्ट को यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है। अनदर थिंग इज बर्ड डैमेज और डिफरेंट एनिमल डैमेज ट्रेसपासिंग, इसको भी प्रिवेंट किया जाता है थ्रू नेट हाउस कल्टिवेशन। Then another thing is plastic tunnel. This type of tunnel you cannot find. This is this is not very common in India, but you can find them in like different Western countries. So ये kind of mulching type का है, लेकिन ये micro environment create करता है, right? दिस टाइप का आपको सर्कुलर, हाफ सर्कुलर बैरियर वो मिल जाएगा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ऐसे पॉलीथीन कवर रहता है, तो ताकि इसका जो माइक्रो क्लाइमेट उसको हम काइंड ऑफ चेंज कर सकते हैं। देन रेन आउट शेल्टर, ये भी कहीं कहीं आपको आईसीआर इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा, राइट? रेन आउट शेल्टर में क्या होता है, सपोज जब रेन नहीं होता है तो ये जो स्लाइडर है, यहाँ पे एक स्लाइडर, मैकेनिकल स्लाइडर लगा होता है, जब रेन होता है ये स्लाइडर मूव कर लेता है, राइट? क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है हैवी रेन से। देन जब रेनफॉल नहीं होता है तो ये पीछे हट जाता है, और क्रॉप को जैसे प्रॉपर सोलर रेडिएशन उसके ऊपर पड़ सके वैसे उसको मैनेज किया जाता है रेन आउट शेल्टर में, राइट? ये हो गया मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है, मल्चिंग में हम लोग भी कुछ प्रोटेक्शन देते हैं क्रॉप को, राइट? फ्रॉम हायर सोलर रेडिएशन हो गया, या फिर फ्रॉम लाइक इवापोरेशन, राइट? टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, मल्चिंग क्या आता है, तो ये भी एक काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ही है। सो आपको आइडिया आ गया कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज नॉट ओनली द ग्रीन हाउस कल्टीवेशन वट एवर वी थिंक जनरली, but there are different types of protected cultivation like net house cultivation, greenhouse cultivation, plastic tunnel, rain out shelter, mulching. All of these are some kind of protected cultivations. So what is greenhouse cultivation? Mostly if we see greenhouse cultivation, we know better, because mostly in our mind it is said that protected cultivation means greenhouse cultivation. होता क्या है ग्रीन हाउस कल्टिवेशन का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस कल्टिवेशन का मतलब ये है, यहाँ पे प्रिंसिपल हम समझ लेते हैं। क्या होता है यहाँ पे, जैसे हम लोग कुछ पैनल है और यहाँ पे पीवीसी या फिर प्लास्टिक या फिर ग्लास कोटेड ये ग्रीन हाउस शेल्टर रहता है, राइट? तो क्या होता है, जब ये जो रेडिएशन आता है सन से,
उसमें से जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है ये इजीली पास कर जाता है इसके अंदर, ग्रीन हाउस जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर इजीली पास हो जाता है। लेकिन जब रिटर्न करता है, पास होने के बाद क्या होता है, पास होने के बाद ये कुछ एनर्जी लॉस करता है। ये जो रेडिएशन आता है अंदर, ये कुछ यहाँ पे स्ट्राइक होके ग्राउंड में या फिर क्रॉप फॉलेज में ये कुछ एनर्जी लॉस करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन में, राइट। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है, इसका जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है ग्रीन हाउस के अंदर उसमें ट्रैप हो जाता है। लॉन्ग वेव रेडिएशन का एनर्जी कम रहता है तो ये इजीली ट्रैप हो जाता है वहाँ पे एटमॉस्फेयर में। या फिर ये जो कोटेड रहता है, मतलब प्लास्टिक हो या फिर पीवीसी हो या फिर ग्लास कोटिंग रहता है, मतलब आउटर कवरिंग रहता है, तो उसमें ये पास नहीं कर पाता है इजीली। तो ये उसी के अंदर जो टेम्परेचर है इसको इंक्रीज करता है। तो जनरली ये है प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन हाउस। अगर जैसे हमारा एटमॉस्फेयर भी हो गया, जैसे अर्थ के ऊपर हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर है, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो फिर हमारा यहाँ पे अर्थ में जो है लाइफ पॉसिबल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर जो है सोलर रेडिएशन जो आता है ग्राउंड में स्ट्राइक होके फिर जब जाता है, ये एटमॉस्फेयर उसको प्रिवेंट करता है टोटली एमिट होने के लिए। तो ये एक काइंड ऑफ टेम्परेचर बनाया रहता है जो कि सुइटेबल है हमारे एनवायरनमेंट को सर्वाइव करने के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। द सेम कंसेप्ट अपीयर्स हियर इन ग्रीन हाउस कल्टिवेशन। We generally that solar radiation is trapped inside this greenhouse and it increases the temperature. Okay, so among all protected cultivation options, greenhouse cultivation provides maximum benefit, right? So there are different types of greenhouse. One is freestanding, another is they are either attached or supported by any structure like window mounted, lean to type, even span type, right? Three main components of greenhouse: one is frame, one is cladding material, another is climate control system. तीन टाइप का मेन कंपोनेंट है ग्रीन हाउस के अंदर। वन इज फ्रेम, दिस इज द फ्रेम। ओके, सपोज हमको एक ग्रीन हाउस बनाना है तो फिर हमको एक फ्रेम बनाना पड़ेगा पहले, पोल हो गया या फिर कुछ स्ट्रक्चर जो कि क्लैडिंग मटेरियल को सपोर्ट कर सकते हैं। क्लैडिंग मटेरियल मतलब क्या है, ये हो गया फ्रेम, राइट। ऐसे एल्यूमिनियम का या फिर पाइप का या फिर किसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक तो फ्रेम जरूरत होता है, ये हो गया फ्रेम। देन क्लैडिंग मटेरियल मतलब जो हम ग्लास या पीवीसी या फिर प्लास्टिक का इसके ऊपर कवरिंग देते हैं, आउटर कवरिंग जो है उसको बोलते हैं फ्रेम। देन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, इसके अंदर हमको टेम्परेचर मेंटेन करना है या फिर लाइट इंटेंसिटी मेंटेन करना है या फिर विंड मेंटेन करना है या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है, तो यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी हम लगा सकते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट है ग्रीन हाउस कल्टिवेशन का। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस कल्टिवेशन देख लेते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है। दिस इज कॉल्ड लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। ओके, लीन टू टाइप में क्या होता है, एक जैसे दीवार होता है, हाउस का जो वॉल रहता है, एक वॉल पे ये जो है ग्रीन स्ट्रक्चर बनाया रहता है ग्रीन हाउस का। तो इसमें क्या होता है, हाफ ऑफ ग्रीन हाउस अटैच टू वॉल एंड रूफ ऑफ ए हाउस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडवांटेज क्या है, ये चीपर ऑप्शन है, इसमें पैसा कम लगता है क्योंकि इसमें एक वॉल जो है, हमारा घर ही हमारा ग्रीन हाउस का सपोर्ट बन गया। देन ये स्पेस सेविंग होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि घर के पास है तो इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली मिल जाएगा और वाटर भी बोरवेल या फिर ट्यूबवेल होगा तो वाटर वहाँ से इजीली हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है लीन टू टाइप में, लिमिटेड वेंटिलेशन एंड सोलर रेडिएशन, डिफिकल्ट इन टेम्परेचर कंट्रोल। वाई? बिकॉज ये एक स्ट्रक्चर, ये एक मूवेबल स्ट्रक्चर नहीं है, या फिर इसका एक साइड में जो है दीवार रह जाता है, तो यहाँ पे सोलर रेडिएशन सपोज हाफ डे में आ रहा है, हाफ डे में नहीं आ रहा है, या फिर वेंटिलेशन अच्छे से नहीं होगा क्योंकि एक तरफ दीवार है तो फिर एयर पास भी, एयर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये लिमिटेशन है लीन टू टाइप का। देन विंडो माउंटेड। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक विंडो यहाँ पे एल वॉल में लटका हुआ था ग्रीन हाउस, क्या ग्रीन हाउस जो है स्ट्रक्चर, यहाँ पे विंडो में जो है स्ट्रक्चर अटैच्ड है, राइट। तो अटैच टू द जनरली साउथ ईस्ट साइड ऑफ विंडो ऑफ द हाउस। ओके, देन इवन स्पैन टाइम, ये आप ज़्यादातर देखे होंगे जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है या फिर आपका यूनिवर्सिटी में, इवन स्पैन टाइप ये एक फुल साइज स्ट्रक्चर है। एडवांटेजेस क्या है, मोस्ट कॉमन, मोर स्पेस, मोर स्पेशियस, इसके अंदर मोर स्पेस मिल जाता है। देन बेटर सेफ फॉर एयर सर्कुलेशन, के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देन लिमिटेशन इसमें क्या है, ये मोस्ट कॉस्टली ऑप्शन, ओवरलैप्ड पैनल में कॉज लीकेज। ओके, यहाँ पे जो पैनल, अगर ओवरलैप्ड पैनल यूज करेंगे, जनरली ओवरलैप्ड पैनल ही यूज होता है, तो फिर वहाँ पे लीकेज का भी प्रॉब्लम होता है।
तो ये तीन टाइप का बेसिक जो है ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लिए। देन व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। जैसे कि मैं बता रहा था कि लो वैल्यू क्रॉप जैसे कि सीरियल्स हो गया, मिलेट्स हो गया, उसको हम अगर ग्रीन हाउस में कल्टीवेट करेंगे तो फिर वो इकोनॉमिक नहीं होगा, राइट। सो इसलिए जो भी हाई वैल्यू क्रॉप जनरली क्या है, हमारा जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप होता है उनके लिए ज़्यादा हमको क्या है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनका वैल्यू भी हाई होता है। तो उनको जनरली ग्रीन हाउस या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम लोग जनरली कल्टीवेट करने का करने करते हैं, राइट। तो फ्लावर्स में कौन सी फ्लावर्स है, जैसे रोज हो गया, जॉर्बेरा हो गया, कार्नेशन हो गया, लिलियम, ऑर्चिड, क्राइसैंथेमम, दीज आर द फ्लावर्स वी जनरली प्रीफर टू कल्टीवेट अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। देन वेजिटेबल्स में जैसे टोमेटो हो गया, कैप्सिकम, क्यूकम्बर, लीफी एंड एक्जोटिक वेजिटेबल्स हो गया जिसका वैल्यू हाई रहता है ऑक्सीजन में, तो उनको हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कल्टीवेट कर सकते हैं। देन फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी हो गया। देन सीडलिंग एंड नर्सरी रेजिंग के लिए भी टिश्यू कल्चर मटेरियल, क्लोनल फॉर फॉरेस्ट्री, फ्रूट ग्राफ्टिंग जैसे लेमन, सिट्रस, मैंगो, गुआवा, लीची का ग्राफ्टिंग के लिए भी हम पॉली हाउस या फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हम जनरली जो इनिशियल स्टेज है क्रॉप का उसको हम वायरस या फिर पैथोजन से फ्री कर सकते हैं। Then importance of protected cultivation. Why protected cultivation is important for our study or for anything, right? Because this is limited in India. Suppose in India there is a scope, there is more scope to grow or to increase the area of protected cultivation, because it is limited to certain places, to certain large farmers only. So then protected crop protects crop from climate extreme. Okay, India is a developing nation, as you know, but its population is growing day by day. So to feed this growing population, to maintain our food security, we need to grow crops without interference of climate change. So protected cultivation might be a great option for that fulfillment. Then fulfillment of demand for quality agricultural produce. आजकल क्या है, आजकल लोग क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आजकल सुपर मार्केट से ज़्यादा फूड परचेज हो रहा है या फिर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जैसे ऑफ सीजन कुछ वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स हम कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उनका डिमांड भी बहुत हाई है और हाई वैल्यू दे के भी लोग उसको खरीदना प्रीफर कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हमारा उसका फुलफिलमेंट के लिए भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट है। देन प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू एक्जोटिक एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ सीजन क्रॉप्स। तो अगर हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ऑफ सीजन में कुछ क्रॉप्स करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर उसको हमारा से क्या बोलते हैं कि जो मॉल्स वगैरह है वहाँ पे अगर हम बेच सकते हैं तो हमको एक रेमुनरेशन का माध्यम बन सकता है वो चीज़। देन स्कोप फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, स्कोप ऑफ व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, एक्सपोर्ट अर्निंग। जैसे कि हम मतलब डिस्कस किए थे कि एक्सपोर्ट अर्निंग अच्छा होता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ग्लोबलाइजेशन डिमांड, ओके, ग्लोबल डिमांड हमारा जो भी डिफरेंट कंट्री में, जैसे सपोज कुछ कंट्री में कोई क्रॉप नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करके वो क्रॉप को अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर कोई क्रॉप का किसी कंट्री में डिमांड है ज़्यादा और उनके पास परचेजिंग पावर है, लेकिन वहाँ पे वो क्रॉप ग्रो नहीं हो पा रहा है, राइट, उसी सीजन में। तो हम लोग अगर वहाँ यहाँ पे ग्रो करके प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में माध्यम से वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमको एक डिमांड हम फुलफिल कर रहे हैं और हमारा जो एक्सपोर्ट अर्निंग है उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव आजकल बहुत ले रहे हैं, जैसे हाईटेक फार्मिंग के लिए थ्रू नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH। तो इनके माध्यम से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है, इनके माध्यम से बहुत सारा सब्सिडीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये कुछ स्कोप बन रहा है जो कि फ्यूचर में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इतना तक हम डिस्कस कर लिए। आपको ऑब्जेक्टिव अभी तक पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस मतलब जैसे कि इंसेक्ट हो गया, पैथोजेंस हो गया, डिजीज हो गया, उनसे प्रोटेक्ट करना। देन अबायोटिक स्ट्रेस मतलब जैसे कि विंड स्पीड हो गया, रेनफॉल हो गया, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, या फिर ड्राउट हो गया, या सपोज रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, इनसे, या फिर हाई इंटेंस सोलर रेडिएशन हो गया, इनसे प्रोटेक्ट करना। देन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर,
प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम जनरली माइक्रो इरिगेशन करते हैं, वहाँ पे फोगर सिस्टम या फिर ड्रिप सिस्टम में या फिर माइक्रो स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ जो वाटर का एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाता है कई गुना। राइट, देन एनहांस प्रोडक्टिविटी, हम सारे चीज़ हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। मिनिमाइज यूज ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ का जरूरत ही नहीं पड़ता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, क्योंकि हम लोग क्लोज्ड एनवायरनमेंट में उसको ग्रो कर रहे हैं, हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं जो कि बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरफेरेंस है, तो वहाँ पे पेस्टिसाइड यूज़ करने का जरूरत नहीं है। देन प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्वालिटी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, देन हेल्दी डिजीज फ्री यूनिफॉर्म प्लांटिंग मटेरियल फॉर प्रोपागेशन, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हम लोग जब ग्राफ्टिंग करके वहाँ पे इनिशियल स्टेज में ग्राफ्टिंग मटेरियल यूज़ कर मतलब ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिजीज फ्री ग्राफ्टिंग मटेरियल हमको मिल रहा है। देन ईयर राउंड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल फ्लावर एंड फ्रूट, बिकॉज हम लोग क्लाइमेट कंट्रोल कर रहे हैं तो हमको वेजिटेबल फॉर्सिंग टाइप का हो गया या फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टाइप का कुछ ईयर राउंड कल्टीवेशन करने का मौका मिल रहा है। लिमिटेशंस ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, क्या क्या लिमिटेशन रहता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करने में। पहला तो इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होता है, क्योंकि हमको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हमको एक प्लानिंग करना पड़ेगा, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट या फिर बहुत सारे चीज़ करना पड़ता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करने से पहले, तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत हाई रहता है, इनिशियल कॉस्ट जो है बहुत हाई रहता है। देन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन पावर, हमको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए एक ट्रेंड लेबर चाहिए होता है, जनरली जो फील्ड में काम करते हैं उनके द्वारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम मैनेज नहीं कर सकते। ट्रेंड एक्सपर्ट लेबर्स, उनका ट्रेनिंग बहुत सारे चीज़ मायने रखता है। देन लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उनका कल्टीवेशन प्रैक्टिस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। राइट, जनरली जो फील्ड में ग्रो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम रेगुलर जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस होता है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम जब स्विच करते हैं वहाँ पे हम खुद को क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ता है, खुद को उसको ऑटोमेटेड करना पड़ता है, तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रहता है। Then all the operations are intensive and require constant effort. Requires close supervision and monitoring. हमको रोज ध्यान देना पड़ता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली प्लांट में, कोई डिजीज तो नहीं लग रहा है या फिर कैसे बिहेव कर रहा है प्लांट सिस्टम, उसको भी स्टडी करना पड़ रहा है। देन रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मेजर हर्डल्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हमको जो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट हो गया या फिर कहीं पे लीकेज हो गया उसको रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। देन रिक्वायर्ड एश्योर मार्केटिंग, हम अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन प्रीफर कर रहे हैं तो फिर अगर मार्केटिंग फैसिलिटी उस क्रॉप के लिए इतना नहीं है या फिर डिमांड वहाँ पे नहीं है, तो फिर हमारा जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करके जो प्रोड्यूस हमारा आता है उनका वैल्यू इतना हाई नहीं रहेगा, तो हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से, हमको लॉस होगा। तो देखना पड़ेगा ये सारी चीज़, मार्केटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, डिमांड है कि नहीं उस चीज़ का जो भी हम ग्रो कर रहे हैं उसी मार्केट में, तो ये सारे चीज़ कुछ लिमिटेशन है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का। देन साइट सिलेक्शन फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हमको कौन सी साइट चूज करना पड़ेगा, जहाँ भी हम मन करे ऐसे नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, कौन सी साइट सुइटेबल है, जैसे कि एक साइट जहाँ पे एक्सपोजर टू एम्पल सनलाइट, वहाँ पे सनलाइट इजीली मिल जा रहा है, एम्पल सनलाइट मिल रहा है, वहाँ पहाड़ी एरिया के पास में नहीं है या फिर कोई बिल्डिंग के पास में नहीं है, ये सारी चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि साइट शुड नॉट बी नियर टॉल ट्रीज बिल्डिंग एंड हिल। राइट, साइट शुड नॉट प्रोन टू वाटर लॉगिंग, एक जैसे शैलो एरिया जहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम ऑफ इन ए ईयर, वहाँ पे हमको नहीं करना है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। शुड बी इन लेवल ग्राउंड एंड प्रिफरेबल दैट स्लोप ऑफ दैट ग्राउंड शुड बी लेस दैन 2%। देन pH of the soil should be in neutral, agricultural neutral soil, जैसे कि 6 to 6.5, and EC should be less than 0.5 डेसिसीमेंट पर मीटर। ये उनका सॉइल का क्वालिटी होना चाहिए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस गुड क्वालिटी वाटर, ओके, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये वाटर इतना फ्रेश वाटर चाहिए होता है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर फर्दर एक्सपांसन, सपोज हमारा जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम कर रहे हैं वो अगर अच्छा चल गया तो फिर हमको सपोज फ्यूचर में एक्सपैंड करना पड़े वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एरिया, तो वहाँ पे उसका स्कोप होना चाहिए। देन गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी सो दैट वी कैन रीच टू द मार्केट एज सुन एज पॉसिबल। द स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन इंडिया, फर्स्ट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्टार्टेड एट IARI, Indian Agricultural Research Institute, through Indo-Israel project in 1998. Approximate area of protected cultivation in India is 30,000 hectare.
लीडिंग स्टेट कौन से स्टेट जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में लीड कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब, दीज आर द लीडिंग स्टेट्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड कल्टीवेशन. सो गाइस, हम लोग बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर लिए, जैसे कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है, क्या क्या क्रॉप्स हम ले सकते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, और ग्रीन हाउस प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन हाउस, देन कौन सी लैंड सुइटेबल है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, देन स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन इंडिया. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या फिर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू आर प्रेसिंग द बेल आइकन, सो दैट you will get notified whenever we upload a video lecture. And you can join our telegram channel, that is agriculture Q&A, so that you can we are organizing there a lot of quiz on daily or weekly basis. You can appear them and you can enhance your knowledge. Stay with our channel, stay with us, and see you in the next lecture. Till then, bye bye, have a great day.